یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں نشاط افضل۔ ماہ ربیع الاول عید میلاد النبی کے حوالے سے کپس کالج راولپنڈی میں نقوش سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس بابرکت کانفرنس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ مولانا مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مفتی صاحب نے طلباء سے خطاب کیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے مشکلات اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مختلف احادیث و واقعات کا تذکرہ کیا گیا، سیرت طیبہ کو اہم قرار دیا گیا، مزید اسوہ حسنہ کے اہم پہلوؤں کو اجاگر بھی کیا گیا۔ بہتر کارکردگی کو سراہتے ہوئے اساتذہ کرام میں شیلڈ تقسیم کیے گئے۔ طلباء نے اسلامی مقدس مقامات کے ماڈلز بنائے اور مفتی صاحب نے عید میلاد النبی کے حوالے سے جہان نیوز سے گفتگو کی۔ آئیے مزید ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں غلام عباس اور اس وقت موجود ہیں ہم 6 روڈ پہ کپس کالج میں، جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے، اور آج جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہاں میلاد کا، اور اس میں برہان سے تشریف لائے علامہ مفتی کاکا خیل صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ آپ نے آج بچوں کو جو کپس کالج کے ہیں اور جشن عید میلادی کے سلسلے میں جو میسیج دیا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہم جہان نیوز والوں کو بھی بتا دیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت کانفرنس تھی یہاں کپس کالج کے اندر، اور نقوش سیرت کے نام سے، اور اس میں اس عنوان پر تھی کہ نئی نسل، ہمارے نوجوان بچے، ٹین ایجرز، یہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیسے رہنمائی حاصل کریں، اور ان کی عملی زندگی میں سیرت طیبہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس پر ماشاءاللہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس کپس کالج نے اور اس کے انتظامیہ نے بچوں کی اس دینی ضرورت کو محسوس کیا، اور یہ سمجھا کہ صرف تعلیم دینا اور ڈگری دینا ہمارا کام نہیں، بلکہ ان بچوں کی تربیت میں ایک مثبت کردار ادا کرنا یہ بھی اساتذہ کا بہت اہم ترین کردار ہے۔ تو یہ پروگرام اسی خیال سے رکھا گیا تھا کہ بچوں کی کچھ تربیتی ضروریات بھی اساتذہ کی طرف متوجہ ہیں، والدین کی طرف متوجہ ہیں۔ تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ بچے بہت زیادہ متوجہ تھے، انتہائی توجہ سے انہوں نے بات سنی، اور اس بات کی ہمیں امید ہے کہ یہ سیشن ان کے لیے ان کی اخلاقی روایات میں اضافہ کرنے کے لیے، مورل ویلیوز بہتر بنانے میں، ان کے لیے زندگی کے فیصلے کرنے میں اور ایک اچھا انسان بننے میں ان کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھی باتیں آپ نے علامہ صاحب سنائی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آج آپ نے یہاں اتنی تکلیف کی، آپ اتنی دور سے آئے، آپ نے کیا فیل کیا کہ بچے آپ کو جس طرح سن رہے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا میسیج یہ پہنچا ہے ان تک، تو آپ نیکسٹ نئی جنریشن کے لیے مزید کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بہت بچوں نے غور سے سنا، اور میرا خیال ہے کہ یہی پیغام ہے نئی نسل کے لیے بھی اور تعلیمی اداروں کے لیے بھی، کہ وہ جیسے اپنے بچوں کے لیے ڈگری کا بندوبست کر رہے ہیں یا ان کے لیے کلاسز کا بندوبست کر رہے ہیں، وہاں ان کی تربیتی چیزوں کا بھی ان کے لیے ضرور اہتمام کریں۔ یہ ہماری نئی نسل ہے، یہ ہماری امیدوں کا محور ہے اور مرکز ہے، اور یہ انہی کو اگر ہم صحیح رہنمائی فراہم کریں گے تو ہمارا کل کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا۔ اس امید کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ ہی اس طرح کے پروگراموں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سائیکا پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک سے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں، یہ کپس کالج میں جشن میلاد النبی کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی، آئیے ان سے ان کے ریویوز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں جشن میلاد النبی کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، آپ نے جشن میلاد النبی کی اس تقریب میں شرکت کی، تو آپ ہمارے ویوز کو کیا اس کے بارے میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ابھی تو مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی ایک اسپیچ تھی جو انہوں نے اسکول کے بچوں کو، کالج کے بچوں کو کنورٹ کی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر جو ہے ان بچوں میں ان کے ساری جو افکار ہیں ان کو کنورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے
बहैसियत असातिज़ा जो हैं हम अपनी ये मतलब काविश जो है इसको दोहरा सकते हैं। इन्होंने हमारे साथ अपनी राय का इजहार किया कि किस तरह से उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम पहलुओं को उजागर किया कि हमें किस तरह से सीरतुन नबी को फॉलो करना चाहिए। तो इस तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए गए हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस किस्म के मॉडल्स बनाए हैं, तारीख़ी इस्लाम से रिलेटेड हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मॉडल पे, यहाँ पर ग़ज़वा बदरुल अकबरा का ये मॉडल है और ये किप्स के स्टूडेंट्स आई थिंक सो, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप किस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? जी हम किस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आपने ये जो मॉडल बनाया हुआ है इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा तफसील से। दरअसल ये मॉडल ग़ज़वा बदर का है, जिसके अंदर हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी साथियों ने मिल के कुफ़ार को शदीद बुरी तरह से शिकस्त दी थी। और हालांकि यहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम भी थी और मुसलमानों के पास हथियार भी नहीं थे और इनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे मुसलमानों के पास और 313 इनकी तादाद थी। हालांकि जब अगर कुफ़ार की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे कई तादाद में घोड़े, ऊँट और अफराद थे जो मुसलमानों को सुकून से शिकस्त दे सकते थे। लेकिन इस पूरी जंग के दौरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में बैठ के दुआ करते रहते और इस तरह जानमाज़ पर रो रहे थे जिसका कि छोटा सा बच्चा रोता है। जी, अब हम ज़रा दूसरे मॉडल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बैटल ऑफ ओहद का ये मॉडल है। बैटल ऑफ ओहद का ये मॉडल बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा इसके बारे में, ये वाला जो मॉडल आपने ग़ज़वा ओहद के हवाले से बनाया हुआ है, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा आप। जी, ये ग़ज़वा ओहद का मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर मुसलमानों ने पहले कुफ़ारों पे एक भारी भरकम तरीके से एक हमला किया था, लेकिन उसके बाद एक ख़ता की वजह से मुसलमानों को एक तरह की शिकस्त पाई गई। इसके अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़ख्मी हुए थे, उनके दंदान शरीफ शहीद हुए थे और कुफ़ार ने अच्छा मौका देखते हुए कि मुसलमानों की ख़ता के ऊपर एक तेज़ एक्शन लेते हुए मुसलमानों को एक तरह से शिकस्त भी दी थी। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। अब ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस मस्जिद का मॉडल इन्होंने बनाया है। जी, बताइएगा ज़रा। जी, मस्जिद अल-अक़सा का मॉडल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा बयान कर रहे हैं उधर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग फ़लस्तीन का नाम और फ़लस्तीन के ऊपर गौर डालें। इसीलिए हमने ये मॉडल दिया है मस्जिद अल-अक़सा का। इसके अंदर पूरा मस्जिद अल-अक़सा बयान किया गया है, एक एक चीज़ बयान किया गई है। वो गुंबद जो मस्जिद अल-अक़सा के अंदर आते हैं और वो जगह जो मस्जिद अल-अक़सा के अंदर मौजूद है वो सारी इसके अंदर हम लोगों ने एक तरह से बनाई हुई है। जी, तो यहाँ पर इन्होंने इस मॉडल के अंदर मस्जिद अक़सा को कवर करके दिखाया गया है। यहाँ पर भी एक नया मॉडल हमारे सामने है, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का तारीख़ी मॉडल बनाया गया है, बैटल ऑफ ट्रेंच। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी थोड़ी सी तफसील से हमें आगाह करें। जी सर, बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, इसको इंग्लिश में बैटल ऑफ ट्रेंच बोलते हैं और उर्दू में इसका ग़ज़वा खंदक बोलते हैं, इसको ग़ज़वा अहज़ाब भी बोलते हैं। यहाँ पर देखें 3 अतराफ़ से तो जो है मदीना पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो एक तरफ था जहाँ से कुफ़ार आ सकते थे वहाँ पर खंदक खोदी गई थी और ये खंदक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर खोली गई थी। और इस ग़ज़वा के लिए जो खंदक खोदी गई थी सहाबा ने बहुत मेहनत से पेट पर पत्थर बांध कर ये खंदक खोदी गई थी और जब ये खंदक खोदी गई तो उसके बाद कुफ़ार को जो है वो मदीना पर हमला करने की जसारत नहीं हुई और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बहुत तेज़ हवा चला दी जिसकी वजह से जो कुफ़ार थे उनके सारे खेमे भी उखड़ गए और खेमे उखड़ने के साथ साथ वो कुफ़ार की जो सारी सफ़े थी वो तहस नहस हो गई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। यहाँ पर एक और मॉडल है हमारे साथ, ये मस्जिद नबवी का मॉडल है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही एक तारीख़ी मॉडल तैयार किया गया है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पूछते हैं इनसे। जी सर, बताइएगा ज़रा, ये मस्जिद नबवी का बहुत ही खूबसूरत आपने मॉडल बनाया है, ज़रा इसको थोड़ा सा हमें बताइएगा डिटेल से। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मॉडल है। ये बिल्कुल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मॉडल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, जब जो है वो खजूरों से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत बनाई गई थी और इसका जो फर्श था वो कच्चा था। इसके एक तरफ जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर है और दूसरी तरफ जो है अज़वाजुल उम्महात जो हैं उनके हुजरे हैं और पहले हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और ये तमाम हुजरे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त ये जो पूरा आपको नक्शा नज़र आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में करीबन ये मदीना था, जो बाद में तौसीह उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु में ये पूरे का पूरा मदीना जो है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल कर दिया गया। उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो मतलब इसके एरिया में सराउंडिंग में रिहाइश पजीर थी? बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज जो हैं वो इसकी सराउंडिंग में थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुबारक हैं हज़रत आयशा
عائشہ रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके घर से लेकर जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर है वो यहाँ पर मौजूद था, अभी भी वो मिंबर मौजूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, यहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे से लेकर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में जितना भी हिस्सा है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अभी भी अगर आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखेंगे तो वहाँ पर उस हिस्सा पर सब्ज़ कलर के कालीन बिछाए हुए हैं, बाकी तमाम हिस्सा पर जो है वो सुर्ख कालीन बिछाए हुए हैं। इस वक्त हम एक और मॉडल पर मौजूद हैं। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा बनाया हुआ है और दिखाने की ये कोशिश की गई है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इन हालात में गुजारी और किस तरह से उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। जी बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है जिसका जो ये मेन दरवाज़ा जो है मस्जिद नबवी के अंदर जाके खुलता था और ये बाहर का दरवाज़ा है जो पीछे से घूम के आता था। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कमरा है जहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को जो जिस के जितने भी सहाबा उन सबको यहाँ पे बिठाते थे और ये उनकी आराम गाह का कमरा था। ये वो वक्त है जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे और ये वही टाइम लैप अगला है जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हो रही थी और इससे आगे वही टाइम लैप है जिसके अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और वो उनके ही हुजरे के अंदर है। उसके बाद ये सबसे आखिरी टाइम लैप है जिसके अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की कब्र मुबारक है, लेकिन हज़रत आयशा ने उनसे भी पर्दा किया, हालांकि वो कब्र के अंदर थे, उनसे पर्दा के लिए उन लोगों ने एक साइड पर पर्दा लगा दिया ताकि उनकी कब्र मुबारक तक भी उनका साया ना पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार अहमद खान, सदर एप्समा शुमाली पंजाब से। इन्होंने जश्न मिलादुन नबी के होने वाली इस तकरीब में शिरकत की। आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है। ये रबीउल नूर का महीना है और आका अलैहिस्सलाम की विलादत इस माह मुबारक में हुई है, तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा एहसान किया कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती हमें अता फरमाई है। तो यकीनी तौर पे अगर माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर तब्दीली आएगी तो वो आका अलैहिस्सलाम के उसवा हसना ही को अपनाने की वजह से आएगी। आज किप्स कॉलेज 6 रोड के ऊपर ज़ीशान साहब जो अदारे के सरबराह हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक एहतमाम किया। सैकड़ों तलबा थे और असातिज़ा इकराम थे, सरबराहान अदारा थे कि जो यहाँ इनकी दावत पे तशरीफ़ लाए और मुफ्ती सैयद अदनान खलील साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से और हमें भी सीखने का मौका मिला है और यकीनी तौर पे बच्चों को भी एक रहनुमाई मिली है कि वो आने वाली जो ज़िंदगी है, उनका जो आने वाला मुस्तकबिल है, उसके ऊपर अगर वो अमल करेंगे तो उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। जी, और आप ज़रा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि ये जो इन्होंने सीरत तैयबा के बारे में बताया है उसको थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से हम इस चीज़ को रिवील कर सकते हैं। देखिए, उसमें जो गुफ्तगू का जो जिस्ट है ना, जो माखज़ है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है और आका अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उनके ऊपर हम अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। कामयाब ज़िंदगी का जो असूल है वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा करीम ने कि तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो उनके बगैर तो हम कामिल नहीं हैं। और जिस तरह ऑक्सीजन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर तसव्वुर नहीं है ज़िंदगी का। अगर ऐसी ज़िंदगी है तो वो जहालत है, वो गुमराही है, वो दलालत है। तो अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ उनकी निस्बतों की कदर करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि आका अलैहिस्सलाम से हम प्यार करें, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों से बढ़कर। यही ईमान है और यही हमारी निजात का रास्ता भी है। जी, तो नाजरीन, ये किप्स कॉलेज में होने वाली तकरीब के हवाले से आपको हमने सारी तफसील से आगाह किया। मुफ्ती साहब की राय भी हमने जानने की कोशिश की और यहाँ पर स्टूडेंट ने अपनी मेहनत से जिन मॉडल्स को बनाया गया उनके बारे में भी हमने स्टूडेंट्स की राय जानी और उनसे जानने की कोशिश की कि इन मॉडल्स के हवाले से बताएं तफसीलात, तो वो भी हमने उनसे पूछी। जी, तो नाजरीन, ये थी अब तक की अहम तफसीलात प्रोग्राम के हवाले से। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें और शेयर करें और फॉलो करें। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए जहां न्यूज़। निशात अफजल, अल्लाह हाफिज़।